Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. In chapter number 1 we were on landforms and we will start from grasslands. Grasslands are the vast grasslands. Means grass से भी आपको show हो रहा है कि grass and land. The area which has vast stretch of only grass area and a few stretches scattered trees will be over here. It covers over 1/5 of the earth land surface. If we divide the earth land, that is 30% of the earth, and on that 30% of area, if we divide it on 5 sections, one part is consists of our landform grassland. Mostly grasslands are located in temperate zone. Only savannas are on tropical zone land. Only savannas are on We all have studied in class 4 that we have 5 important lines of latitude. The center line is equator at 0 degree. Above equator, we have Tropic of Cancer and Arctic Circle. Below equator, we have Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Here, the area from Tropic of Center to Tropic of Capricorn was tropical zone. It is tropical zone. It has only savannas. If we look here, Tropic of Cancer till Arctic Circle, we have temperate zone, and same we have here, Tropic of Capricorn till Arctic Circle. Here we have also our tropical zone. If we look on the map here, prairies, 5 different named prairies are in North America here. North of America, we have prairies. Pampas, we have in South of America here. South of America, we have Pampas. Steppes we have in Russia. You can see Asia and Russia में steppes होती हैं. Steppes, you can also say that steppes are like the vast area of grass with a few, with no tree area. And it is in Asia and Europe. Indo-Asia, Euro-Asia, we say that the temperate zone grasslands of Europe and Asia are known as steppes. Then we have veld in our South Africa. Our south of Africa, we have velds. Downs we have in Australia. Look here in the map here. This is Australia. And in Australia, we have downs. Savanna we have in Central Asia, like here. At this part, Asia ke bilkul center mein we have savannas. Steppes are the first thing. Steppes are without the trees. There is no tree in steppe, and I am already told you ये temperate zone में है. The temperate zone grasslands of Europe and Asia are known as steppes. Steppes are without tree areas. As you all know that grasslands are found in both. Grasslands जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये both land में होंगे. Cold and hot countries, दोनों countries में. The plants which grow here are tough, such as short grass or herbs. सिर्फ हर्ब्स और शॉर्ट ग्रास होंगे और इन समर ग्रासलैंड ब्लूम्स वाइल्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं. ठीक है, ग्रास लैंड नेम से भी शो हो रहा है कि ग्रास है और लैंड है और माइल्स एंड माइल्स ऑफ ग्रास है.
स्टेपिस के बाद वी हैव प्रेरीज. प्रेरीज वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड है, कवर बाय माइल्स एंड माइल्स ऑफ ग्रास है. समर जो है वो ग्रीन ग्रास होगा. द ग्रास कलर विल बी ग्रीन इन समर एंड द ग्रास कलर विल बी ब्राउन इन ऑटम. देयर हार्डली एनी ट्री है. सॉइल जो है वो एक्सट्रीमली फर्टाइल है, एक्सट्रीम लेवल की फर्टाइल कि आपकी क्रॉप्स, आपका सब कुछ ग्रो हो सकता है. ठीक है. सॉइल बहुत एक्सट्रीम लेवल की फर्टाइल है. ह्यूमस होती है जिस तरह ऑर्गेनिक आपकी सॉइल हो, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन हुई हो उसमें. लाइक ऑल ग्रासलैंड इन फर्टाइल बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस. हॉट समर है और कोल्ड विंटर्स हैं विद मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द समर. समर में दरमियानी बारिश होगी, समर हॉट है एंड विंटर यहाँ पे कोल्ड. अर्लियर prairies was grazing ground for million of bison. जो bison ये आप एनिमल देख रहे हो पहले, ठीक है, पहले प्रेरीज में बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कौन कर रहे थे? बाइसन्स कर रहे थे. एग्रीकल्चर के लिहाज से आई हैव टोल्ड यू दैट प्रेरीज आर सोयल फर्टाइल है, उनके परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर हैं. वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इनको. इट मेक्स यूएस of America the largest exporters of wheat in the world. Other main crops इनकी maize, barley, rye and oat हैं. Farm works, harvesting, sowing, threshing. Please turn on your video. Sayyida Dua Rahman, please turn on your video beta. Marji Hamid, Marji, please turn on your video so that I can view you all. Thank you, thank you. Beta, don't change your backgrounds. Your face is not clear. Dua Rahman, hurry up, change it. Turn on your video, all of you, hurry up. Grasslands are of two type, tropical and temperate. Grasslands की कौन सी type है? Tropical and temperate. And you all know yellow region जो equator के करीब है, near to the equator है, that is our tropical. And we have temperate region, ये जो blue में आ रहा है. और Arctic में we don't have any grassland. ये जो blue area Arctic में आपको आ रहा है, ये light blue में we don't have any grasslands on Arctic. जो latitudes में similar होते हैं ना, latitudes में ये वाले similar, उनके climates भी same होते हैं. they have same climates. class 4 में हमने बहुत डिटेल से longitude and latitude पढ़े हुए हैं. उनमें यही बात है कि latitudes हमें क्या tell कर रहे होते हैं? climate zones. climate zones भी इनको कह रहे होते हैं ना, latitudes को climate zones भी कह रहे हैं क्योंकि पूरी सेम लाइन में सेम क्लाइमेट होगा. Region lying in similar latitude zone have quite identical features. ये आपको different grasslands आ रहे हैं, generally open होते हैं, fairly flat regions होते हैं, dominate किससे हो रहे होते हैं? grass से हो रहे होते हैं, dominated by grass. कहीं कहीं scattered trees होते हैं. Look here in this picture, Europe में we have steppes, North America में prairies, pampas we have in South America. South Africa we have wells, Australia we have downs and China and Mongolia में we have ये स्टेपीज ही हैं हमारी. अगर आप स्टेपीज के बारे में सर्च करें, स्टेपीज ऑफ मंगोलिया, तो आपको बहुत खूबसूरत सीनरीज और बहुत प्यारे व्यूज मिलते हैं. जी, क्या सा टेम्परेचर है वहाँ पे? मैंने आपको बताया समर आपकी हॉट है एंड ह्यूमिड है विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20. टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें जिसमें प्रेरीज भी हैं, स्टेपास भी हैं, पैम्पास भी हैं एंड वेल्स एंड डाउन्स वी हैव. ड्यूरिंग समर्स द रीजन एक्सपीरियंसेस कन्वेंशनल रेन. कन्वेंशनल रेन हो रही है, रेनफॉल
किसके साथ आ रही है? बाय lightning and thunder. Which flowers are there in temperate grasslands? Cornflower, well indigo, sunflower and blazing star. इस तरह से एस्टर्स. क्लाइमेट कैसा है जी? समर बहुत वार्म है और विंटर कोल्ड है. द क्लाइमेट एज well as the deep rich soil is conducive for the growth of crops. ये आप soil को नीचे से देखें, extremely fertile, extremely rich soil है, humus से full of humus. Crops कौन कौन सी है? Corn, wheat, oats and barley in our temperate grasslands. We can grow crops, wheat, oats and barley. That's why it is also known as granaries of the world. Prairies जो हैं, prairies are also largest corn growing region. सबसे ज्यादा कॉर्न यहाँ पे ग्रो हो रहा होता है प्रेरीज में. इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की ग्रीनरीज भी कहा जाता है. Now we will look further for tropical grassland. Tropical grassland कौन से grasslands होंगे जो इक्वेटर से थोड़े से क्लोज हैं? तो इक्वेटर से क्लोज हैं, ऑब्वियसली बात है, हॉट समर होगा. एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम सवानास भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम सवानास. These grasslands have relatively high temperature throughout the year. Obviously बात है, सन डायरेक्ट आपको पड़ रहा है, ठीक है. अर्थ का वो पार्ट है इक्वेटर जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है ना, तो आपके पास सन की रेज डायरेक्ट पड़ी होती हैं, तो एक्सट्रीमली हॉट वेदर होता है इन समर्स. थ्रू आउट द ईयर ही होता है सीजनल रेनफॉल बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ इक्वेटर. इक्वेटर के हम जितने क्लोज होंगे हमें डायरेक्ट रेज पड़ी होती हैं. क्लास 4 में बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन इफ यू हैव फॉरगॉटन, थोड़ा सा माइंड में रखें कि जो एरियाज इक्वेटर के नियर हैं, जो हमारे ट्रॉपिक जोन्स हैं, उनमें क्लाइमेट एक्सट्रीमली हॉट होता है इन समर. और ट्रॉपिक में सवानास कहते हैं ट्रॉपिक ग्रासलैंड्स को. These areas receive moderate और लो रेनफॉल. ठीक है, कम रेनफॉल होती है यहाँ पे, मॉडरेट और कम रेनफॉल होती है. एनिमल्स कौन से हैं ट्रॉपिक रीजन में? ट्रॉपिक ग्रासलैंड्स में हमारे डियर, एंटीलोप, जेब्रा, जिराफ, बेफलो एंड एलिफेंट. यहाँ पे हमारे फ्लाइंग बर्ड्स बहुत कम होते हैं. चीता, लेपर्ड, लाइन, हाइनस. ऑस्ट्रिच होते हैं. flightless bird found in these regions. क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? कॉटन है, शुगर केन एंड टबैको. शुगर केन, टबैको एंड कॉटन, 3 मेन क्रॉप्स हैं हमारे ग्रासलैंड्स की. यहाँ पे ग्रासलैंड का टॉपिक फिनिश होता है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मेडिटेरियन वुडलैंड. अब मेडिटेरियन वुडलैंड नेम से ही आपको शो हो रहा है ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है. मेडिटेरियन सी के करीब का एरिया, नियर है. इट लाइज near the Mediterranean. Area that are hot and dry in summer. समर यहाँ पे हॉट एंड ड्राई है एंड मॉडरेट विंटर है, दरमियानी सी विंटर है, कोई बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है. और आपको पता है अगर इतना वो हो तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी ऑब्वियसली. जहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो जाए वहाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी इंक्रीज भी हो जाती है. दिस रीजन लाइज नियर द मेडिटेरियन सी. कहाँ पे लाई कर रहा है? मेडिटेरियन सी के बिल्कुल पास कर रहा है. तो इसमें क्या होगा? मेडिटेरियन सी की वजह से एक तो विंटर कोल्ड हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना. विंटर में आपको वाटर से भी आपको आ रही होंगी, तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा. इस वाटर हीट होके जब वेपोरेट होगा तो सन के थ्रू वेपर हो जाएगा, वेपरेशन हो जाएगी, उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड देन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज रेन. रेन आपकी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी, ठीक है. क्लाउड्स में वाटर ज्यादा बनता जाएगा,
तो इस वजह से मेडिटेरियन सी के नियर वुडलैंड्स जो है उसमें रेनफॉल ज्यादा होती है। एरियाज कौन कौन से हैं? वी हैव कौन कौन से? ग्रीस, इटली, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया जो है, दीज आर सम कंट्रीज जो मेडिटेरियन वुडलैंड में कंसीडर किए जाते हैं। आर द एरियाज हॉट एंड ड्राई इन समर एंड हैव मॉडरेट विंटर, दरमियाना सा विंटर होता है। मेडिटेरियन वुडलैंड्स आर फर्टाइल, ये आपको यहाँ पिक्चर में भी शो हो रहा है, देखें कितनी ग्रीनरी है और फर्टाइल रीजन्स हैं। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे? एक तो यहाँ पे सिट्रस वाले फ्रूट्स बहुत अवेलेबल हैं, ऑलिव ट्रीज, ये ट्री ऑलिव है, ऑलिव ट्री है। फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉमन प्लांट्स। एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पोलर रीजन्स। ठीक है जी, पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? विच आर close to our north and south pole, easy way to remember it। जो हम polar regions है वो हमारे north and south pole, जो हमारे two poles हैं, अर्थ के poles हैं ना, north पे ऊपर upper पे हमारे पास north है, we have north, lower पे we have south। तो north and south pole के जो creep regions है, those are the polar regions, those are our polar regions। The weather is cold, windy and icy all the year। full year जो है वो weather कैसा रह रहा है? cold भी रह रहा है, icy भी है and all the year रह रहा है। ये ice जो है ये full year रहेगी, तो extremely cold weather है। The weather there is cold, windy, icy all the year। और अगर आप यहाँ के एनिमल्स के बारे में जानना चाह रहे हो तो कौन से एनिमल्स होंगे? देखें, ये हैं, यहाँ पे वी हैव some animals like you can say polar bear and penguins and seals and survive in this extreme weather। obviously global warming हो रही है, तो some of you may have in your mind जब global warming होगी और यहाँ की आइस मेल्ट होना शुरू होगी तो सबसे ज्यादा डेंजर में यही एनिमल्स हैं, penguins, bears and सील, क्योंकि यही एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ओनली सरवाइव करते हैं। इनमें कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं? कनाडा, यूएस आ रहा है, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड रशिया। ऑलवेज फ्रोजन होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आइस कैप्स। सम पार्ट जो है ना, जिस जो फुल ईयर फ्रीजिंग में ही रहते हैं, समर में भी वो मेल्ट नहीं हो रहे, उनको हम क्या कहते हैं? आइस कैप्स। एंड दे आर लोकेटेड इन वेरी सेंटर ऑफ आर्टिक एंड एंटार्क्टिक। अब कहाँ पे आर्टिक रीजन हमारा? अगर हम यहाँ पे देखें, चलें इस प्लेस से मैं आपको बताती हूँ, ये आर्टिक सर्कल है ना, ये आर्टिक सर्कल वाला, अबव आर्टिक वाला लाइन वाला, एंड एंटार्क्टिक यहाँ लो, बिलो इट। ठीक है, वी हैव यहाँ पे हमारे पास पोलर रीजन्स है और एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। और ये बात भी आपको पता है क्यों वो कोल्ड होते हैं? इस वजह से वो कोल्ड होते हैं क्योंकि वहां पे सनलाइट कम पड़ी होती है, फिर जो आइस है वो भी रिफ्लेक्ट कर रही होती है वापस, थ्रोइंग बैक द सनलाइट। थंड्रा जो है वो हमारा ओनली दैट थोड़ा सा डिफ्रोस्ट होता है, टाइनी बिट इन द समर, बट बिलो दैट स्टेज ऑलवेज फ्रोजन। मतलब अगर आप थंड्रा की ये पिक्चर देखो, आपको ये लग रहा होगा ये तो बहुत समर में है ना, एक्सट्रीम इस पार्ट की तरफ अगर आप आओ तो ये फ्रोजन होगा, और फ्रोजन इस तरह से होगा कि नीचे लैंड के नीचे यू हैव स्नो। ये नहीं है कि आपके लैंड के नीचे स्नो नहीं है। एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, -6 तक चला जाता है टेम्परेचर इन समर और -90 तक इट गोज इन द विंटर। लिटिल वेजिटेशन है क्योंकि लोग क्या, ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो फिशिंग ही कर रहे हैं, फिशिंग जो है वो ही सोर्स ऑफ फूड है।
मोस्टली। जी अब थंड्रा पे आ जाए। कोल्डेस्ट बूम ऑन अर्थ है -40 F विंटर में है फॉरेन हाइट्स में, एंड समर में टेम्परेचर 65 फॉरेन हाइट है। टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग मेजोरिटी। इसमें क्या है, ट्री लेस एरिया है। कौन सा एरिया है, ट्री लेस एरिया। ट्रीज बहुत कम है, ये ट्री है ही नहीं। देयर इज लिटिल वेजिटेशन। वेजिटेशन यहाँ पे कौन सी होगी, मोस एंड लिकिन। लिकिन जैसे वो फंगस नहीं होती है वैसी। एंड फ्लावरिंग हर्ब्स, यू कैन व्यू फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्लावरिंग हर्ब्स हैं। ड्यूरिंग समर व्हेन द टेम्परेचर इज वार्म, ऑल्दो जब विंटर होगा देयर विल बी नो आइस। there will be ice and ice, so there will be no flowers and nothing will be like this कि कोई फ्लावर हो, कोई ग्रास लैंड कहीं आपको ठंडा में विंटर्स में नजर नहीं आएगा। ठीक है, समर में तो फिर आपको हर्ब्स या मॉस या फिर आपको लिकिन नजर आ रही हैं। द पीपल हु आर लिविंग देयर, इनको इन्यूट कहते हैं, इन्यूट। पोलर हैबिटेंट्स ऑफ थंड्रा, थंड्रा के जो पोलर हैबिटेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, इन्यूट्स कहते हैं। द पीपल हु लिव इन दीज एरियाज, उनको इन्यूट्स कह रहे होते हैं, जैसे अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड के पीपल हैं। प्रीवियसली उनको स्कीमोस कहा जाता है, और ये कहाँ रह रहे होते हैं, ये स्कीमो आइस से बना हुआ ये हाउस बनाते हैं, इसको इग्लू कहते हैं, इग्लूज में। which are houses made of blocks of ice in winter and skin tent in summer months. समर में वो लोग स्किन टेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 10 on your book. Dua Rahman, do you have any question? No. No? Turn on your camera. Marich, what's your name, beta? Turn on your camera and do tell me what's your name. Write your proper name. You don't have any query? Greenlands के बारे में, Mediterranean woodlands के बारे में you want to ask, polar regions, tundra? No? Okay ji. First, filling the blanks with correct answer. The physical attributes and features of earth are called, क्या उन्हें कहते हैं, physical attributes. फिजिकल एट्रीब्यूट्स अर्थ के जो है उन्हें हम क्लाउड्स भी नहीं कह सकते, लैंडफॉर्म एंड रिवर, इन दोनों में से क्या कहेंगे? ऑब्वियसली लैंडफॉर्म्स होंगे, क्योंकि रिवर्स भी नहीं हो सकते ना। फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फीचर्स ऑफ अर्थ, अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज मोस्टली सराउंडेड बाय लैंड। सराउंडेड क्या कर रही है वो, लैंड, लैंड को सराउंड कर रही है। अब अगर एक लैंड को सराउंड करेगी बॉडी, तो वो क्या होगी? लुक हियर, a body of water that is mostly surrounded by land, island, plateau और bay। वो bay होगी ना, क्योंकि island भी नहीं हो सकती। A dash is a natural stream of water that flows into the sea or lake। sea और lake में कहाँ से कहाँ पानी भेजेगी sea और lake? A river, river, क्योंकि वैली में भी नहीं वाटर होता और माउंटेन्स में भी वाटर नहीं होता, तो नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर तो वो रिवर ही है ना, दैट फ्लोज इनटू द सी और लेक, जो लेक और सी में फ्लो कर रहा है। द मोस्ट, फोर्थ वन इज द मोस्ट फेमस माउंटेन रेंज इन एशिया। एशिया की कौन सी है माउंटेन रेंज फेमस? रॉकी माउंटेन्स नो, एटलस माउंटेन्स नो, third one is Himalaya mountains, obviously Himalaya mountains is the right answer, Himalaya mountains, an area where river flows
out into the sea is called? कौन सा एरिया जहाँ पे रिवर फ्लो करता है into the sea में? That is called valley? No. Then delta. It is called delta. Is it clear? Dua, have you marked all the answers? Unmute yourself, beta. Have you marked all the question answers? Yes, teacher. Any confusion? In first we have landforms, in second we have bay, third we have river, fourth we have Himalaya mountains, fifth we have delta. True and false, if we look here, in the desert it is cold during the day and hot during the night. Desert में cold होता है during the day? No. Desert में तो hot and sandy place होती है और day हमारा बहुत ज्यादा warm होता है. That's why we will write false. F. Dunes form many shapes because of wind movement. Wind movement की वजह से dunes की shape change होती रहती है. That's true. The Sahara Desert is in South America. False. Sahara Desert South America में नहीं है. आपने deserts पढ़े हैं ना बैग पे? Delta and Indus lies at Kitty. Okay, जी. Desert plants have short roots. Desert के plants की roots जो होती हैं वो short होती हैं? No. उनकी roots बहुत ज्यादा long होती हैं. ठीक है ना? False है ये. Camels are used as transport in the desert. Desert का में transport के लिए what we use? Camel. True है. First is true, second is false, third one is false, fourth one is false, fifth one is true. Match landforms with the picture. Match करने हैं landforms. अब first वाला आपको क्या नजर आ रहा है? कौन सा है landform? जी दुआ. Landform. Waterfall. First one. आपको कौन सी लग Waterfall. रही है? On page number 11. Waterfall. Waterfall के साथ मैच हो जाएगी. Second one देखें, यहाँ पे फैसल मॉस्क भी आपको नजर आ रही है. ठीक है, फैसल मॉस्क भी नजर आ रही है ना. तो which one is this? ये माउंटेन होंगे या हिल्स होंगी? हिल्स होंगी, क्योंकि माउंटेन्स तो आपको पता है आगे शुरू होते हैं ना. ये हिल्स हैं. यू कैन, आप इस पे क्लाइम कर सकते हो इजीली. ठीक है. सेकंड वन जहाँ फैसल मॉस्क भी नजर आ रही है, इट इज हिल्स. थर्ड वन पे आ जाए. थर्ड वन जहाँ आपको व्हाइट ये एरिया नजर आ रहा है, ये आपके माउंटेन्स है. देखो दोनों में से कौन सी हाई है एंड किसकी एजेस जो है वो स्टीप है? थर्ड वन इज माउंटेन. फोर्थ वन आप मुझे बताना पसंद करोगे कौन सी है? Valley. Valley. Fourth one is valley. Okay, on page number 12 आ जाए. This is your homework. You have to complete this. Give names of few landforms in Pakistan. पाकिस्तान के few आपने landforms बताने हैं. उसमें आपने hills बतानी है जो पाकिस्तान में ही हो. जैसे आपकी मार्गला हिल
इस तरह से हिल्स लिखनी है। सेकंड पे आपने माउंटेन्स लिखने हैं, जैसे आपका केटू है, नागा पर्वत है। फिर आपके रिवर्स हैं, रिवर्स में आपका रावी एंड झेलम है। फिर लेक्स में यू हैव सतपारा लेक, लालूसर लेक। डेल्टास में यू हैव इंडस रिवर डेल्टा। एंड प्लेट्यू में बलोचिस्तान प्लेट्यू और पोटूहार प्लेट्यू। दिस इज योर होमवर्क। और क्लास आपके पास नोट्स हैं चैप्टर 1 के? क्वेश्चन आंसर्स के चैप्टर 1 के नोट्स हैं? नो। नहीं? ओके। ये आपने ऑफिस से लेने हैं चैप्टर 1 के नोट्स। मैं फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी करने हैं और अपनी कॉपी वर्क कंप्लीट करना। Go through the chapter 1, read it. If you have any query, then you can ask it. Reading of chapter is your homework, and page number 10, 12 is your homework. You have to complete page number 12, complete its exercise, go through it. If you have any query, then we will discuss in our next class. ठीक है? टीचर ये स्कूल Okay, से till then, take care. Allah Hafiz. स्कूल से मिलेंगे? जी हाँ जी, स्कूल ऑफिस से मिलेंगे, लेकिन फिर भी आई विल कंफर्म इन माय नेक्स्ट क्लास। जो मेरी नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें मैं आपको कंफर्म कर दूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि टुमारो यू हैव अ हॉलीडे। टीचर अभी नहीं कंफर्म है? जी, अभी नहीं आपके पास कंफर्म है? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। बी लाउड। थोड़ा सा ऊंची बोलो बेटा। सर आपको अभी नहीं पता कि ये ऑफिस से मिलेंगे कि वैसे हाँ मिलेंगे? जी, आई विल कंफर्म फ्रॉम द ऑफिस। मैं एडमिन ऑफिस से कंफर्म करके आई विल लेट यू नो। Till then you have to go through the chapter, reading करें, exercise you don't have in your hands right now so that you can't copy it, or school is off for tomorrow, then you will get it on Monday. ठीक है? Question answer, if you have any query then you can ask. ये सारे आपको clear हैं? Grasslands. Okay, take care. Allah Hafiz. Take good care of yourself. Happy Independence Day from my side. Enjoy your long weekend. Allah Hafiz.